India's rich and diverse forests have long been inhabited by both Adivasi and non-Adivasi agrarian communities, whose lives and livelihoods have been intertwined with these landscapes in complex ways. However, with the advent of colonial rule, this once serene environment became the battleground for a bitter struggle over forest control. The British declared India's forests as state property to be managed for revenue and timber by the Imperial Forest Department. The Adivasi communities residing in the central Indian forest belt were particularly affected by this approach to forest governance. Unfortunately, this policy persisted after independence, leading to enduring conflicts between the state and local communities. The Forest Rights Act of 2006 is a landmark piece of environmental legislation. The Act aims to reinstate the role of local people in forest governance. Along with granting community access and use rights to forests, the Act includes the provision of community forest resource rights, which empowers the general body of the village or Gram Sabhas to protect and manage forest resources for sustainable livelihoods. Since the passing of the Forest Rights Act in 2006, ATREE has engaged extensively in research, policy outreach and action on the ground in terms of the implementation of the community forest rights provisions of the Act. Since 2016, we have expanded our focus to the central Indian forest belt, especially the states of Maharashtra, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. We have mapped the potential for CFR rights in this region. We have analyzed the implementation of CFR rights in Chhattisgarh. We have helped the Maharashtra government develop guidelines for CFR management planning, and we have studied the impact of CFR management by villagers in eastern Maharashtra. In 2021, we were invited to Bastar district in Chhattisgarh to help the district administration in the implementation of CFR rights. Bastar is a beautiful region known for its breathtaking waterfalls nestled within lush mixed sal forests interspersed with rice and millet farms. This picturesque landscape is home to diverse Adivasi communities, each with their unique languages, all sharing a profound connection with the forests. Before we began our work in Bastar district, the task of CFR rights recognition had been carried out largely by the Forest Department in a fairly top-down manner. As a result, villagers often didn't even know that they had received CFR rights, and the areas that were recognized were either too small or from the wrong forests. Our goal in this project was to improve the process of CFR rights recognition and to start the ball rolling towards communities managing the forest by themselves after their rights are recognized. The capacity building effort involved multiple elements. First and foremost was the training and empowerment of people from the Adivasi community. इस पूरे प्रक्रिया में आदिवासी समाज के युवा ही जुड़े हुए हैं और ये ऐसे युवा हैं जो पढ़े लिखे भी हैं और अपने समुदाय को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं. इसी कारण से इनकी नियुक्ति हमने किया. इसका ये फ़ायदा हुआ कि ये जो हमारे FRA कोऑर्डिनेटर्स हैं ये गांव में जाके अपने भाषाओं में जागरूकता फैलाएं और लोगों से बातचीत करके ये पूरा प्रक्रिया की शुरुआत की. ATREE began the capacity building efforts with several workshops for Adivasi youth. These workshops focused on the principles of CFR rights, understanding government maps and land categories, and utilizing GPS and WebGIS tools. Additionally, the team conducted visits to villages in the Kondagaon district where successful CFR claims had been made. Subsequently, the team visited Panchgaon village in Maharashtra, which has effectively managed its CFR area for several years and received training on assisting villagers in developing their own CFR management plans. Government officials hold pivotal positions in the preparation and approval of claims at various levels. ATREE organized a series of workshops at the block and district levels, engaging officials from the revenue, forest, tribal, and Panchayati Raj departments. These workshops aim to foster a deep understanding of the essence of CFR rights and the proper roles of officials in the claim-making process. Furthermore, ATREE utilized its mapping tools to illustrate common errors that often arise during the top-down implementation phase.
वेद जीएस जो एट्री ने बनाया है बस्तर प्रशासन के सहयोग से, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है इस पूरे क्लेम मेकिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा टूल है, एक ऐसा वेबसाइट है जिसको कोई भी पब्लिक कहीं से भी ओपन कर सकता है। To identify the community forest resource lands easily and transparently, ATRI has created two interlinked tools. The first is a publicly accessible WebGIS that allows users to zoom into any village and view revenue boundaries, forest compartment boundaries, and the complete revenue map on Google Earth. The second tool is the Amcho CFR Android app with Hindi menus, enabling villagers to map their claim boundaries using their mobile phones. Finally, authorized villagers can upload these boundaries to the WebGIS, and everyone can see which village is claiming what area, so as to avoid overlaps and resultant conflicts. इससे दो फ़ायदा है। पहला फ़ायदा कि हमको क्लेम कहाँ पे करना है वो हमें समझ आ जाती है। दूसरा ये कि लोगों को आसानी से समझ आता है कि जंगलें कितनी हैं, ज़मीनें कितनी हैं और किन किन गांव उनके नेबर विलेजेस हैं वो किस तरीके से उनसे जुड़े हुए हैं। तो उससे जो कॉन्फ्लिक्ट होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है और लोगों को भी अपना गांव देखकर, अपने जंगल देखकर, अपने पारंपरिक सीमा देखकर या फिर राजस्व की सीमा देखकर उनको पूरा स्पष्ट हो जाता है कि उनको किस तरीके का दावे तैयार करना है। Equipped with training and the mapping tools, the on-ground work begins with awareness building in the villages. तो इस प्रक्रिया को जब हम पहले गांव में चालू किए तो सबसे पहले जब हम मुंडापाल हो गया, जैसे कोलिंग क्षेत्र हो गया, तो ऐसे काम चालू किए तो ऐसा गांव वालों को लगता था कि हमको इतना बड़ा जंगल का एरिया कैसे मिल सकता है। एक गांव वालों का एक पहले से सोच था कि ये तो हमारा है नहीं, उनका एक सोच था कि फॉरेस्ट का है। तो वैसा एक हमारे पास बड़ी चुनौती आ जाती थी कि ये लोगों को कैसे समझाएं। तो लोगों को हम कानून के बारे में समझाइश देके तो उनको एक समझाए कि नहीं, ये वास्तविक में जो पहले से गांव आपका बसा है वो जिससे आपका पारंपरिक जो सीमा है, जो सीमा के अंदर जितना जंगल ज़मीन आता है वो आपका ही है। ये करके हम जब गांव में जाके अपने बोली भाषा में समझाते तब गांव वाले समझ बनाते थे। दावा तैयार करना अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कम से कम 3 महीने तक का भी समय इसमें लग सकता है। तो आप देखेंगे कि जब प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो सीमा निर्धारण करने से लेके उस सीमा का जीपीएस मशीन के द्वारा सीमांकन करने से लेके पूरा अंतिम ग्राम सभा के अनुमोदन तक की एक पूरी लंबी प्रक्रिया है। गांव वाले आवेदन दिए रहते हैं, वो जगह में पंचायत सचिव और सरपंच आते हैं, वहाँ हम लोग भी जाते हैं और पूरा नियम के बारे में हम लोग बताते हैं। और फिर 1-1.5 सप्ताह बाद कोर टीम का गांव में बैठक होता है। बैठक होने के बाद सियान लोग का अलग टीम रहता है, महिलाओं का अलग टीम, युवाओं लोग का जनप्रतिनिधि, ऐसा 5 अलग अलग टीम बैठ के उन लोग गांव का पूरा जितना संद है उतना वहाँ का गौण खनिज, भौतिक संपदा, पारंपरिक पहचान ये सब लिखते हैं। फिर बाद में नजरी नक्शा के लिए सूचना देते हैं। गांव वालों को सही तरीका पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, सीएफआर के बारे में, कि किस तरह से हमें आगे कागजी कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ गांव वालों को पता था तो वो करते थे, लेकिन बीच बीच में कुछ फॉर्म जो है खाली रहता था, जैसे कि बुजुर्गों का कथन, सीमावर्ती गांव को सूचना देनी और बहुत ऐसे कुछ फॉर्म है जो ठीक से वो भर नहीं पा रहे थे। जैसे ही हम आए उनको बताए तो हम सब साथ में मिलके इस फॉर्म को भरा हमने। जो गांव में दावा हुआ है वो गांव वाले वन अधिकार समिति अध्यक्ष, सचिव और गांव के युवा सियान लोग, उन लोग ज़मीन में कहीं अच्छे जगह में उन लोग सड़क या मिट्टी के माध्यम से उन लोग अपना जितना संद है उतना उन लोग नजरी नक्शा बनाते हैं। वहाँ संकट भी दर्शाते हैं, देव स्थल, आंगनबाड़ी, ये सब दर्शाते हैं। जीपीएस सूचना देने के बाद वन विभाग, राजस्व विभाग, सीमावर्ती गांव वाले आते हैं। आने के बाद जो गांव में दावा किए हैं
वो गांव वाले देवी देवताओं के साथ गुड़ी नहीं तो उन लोग का कहीं देवी स्थल रहता है, ऐसी जगह से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के बाद देवी तो सामने जाता है, हम लोग जो GPS लिए रहते हैं वो देवी देवता के पीछे पीछे GPS मशीन और मोबाइल लेकर जाते हैं। वो मैपिंग होने के बाद फिर एक बार बैठते हैं, नहीं तो गांव-गांव में जाके सहमति मांगते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है ऐसा करके बोलते हैं गांव वाले लोग को, तो उन लोग नहीं है बोल के सहमति दे देते हैं। Finally, the entire claim document is submitted to the subdivision level committee, which reviews it and passes it on to the district level committee. Once approved by the DLC, the village receives its CFRR title. जैसा कि हम बात किए थे कि अभी भी ऑन ग्राउंड चैलेंजेस हैं, उसमें से जो प्रमुख रूप से कि अभी भी जागरूकता में कमी है। जागरूकता में कमी समाज में भी है और ये प्रशासन में भी है, जिसके कारण कई सारे कॉन्फ्लिक्ट भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि बाउंड्री का कॉन्फ्लिक्ट, दो गांवों के बीच में अगर बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो वो पूरी तरीके से जो CFRR के जो दावे की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है, और अगर वो प्रक्रियाएं रुक गई तो फिर आगे वो दावे सुनिश्चित नहीं हो पाते। तो हालांकि इस तरीके की प्रक्रियाओं को रिजॉल्व करने के लिए, इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग निरंतर यहाँ पे लगे हुए हैं, और इस प्रक्रिया से जुड़ के हमने बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी रिजॉल्व किए हैं। बस्तर ज़िला को CFRR के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो आज और 2 साल पहले के बीच में काफ़ी अंतर हमको समझ आते हैं। जब हम यहाँ पे काम करने आए, लोगों को ये भरोसा ही नहीं था कि कम्युनिटी रिसोर्स राइट नाम की कोई चीज़ होती है और सही में ग्राम सभाओं को उनके जंगलों पे अधिकार मिल सकता है। अगर हम थोड़ा अचीवमेंट के बारे में बात करें तो अचीवमेंट हम 2 तरीके से देखते हैं। पहला आंकड़े के रूप में, दूसरा जो समाज में बदलाव आया है। समाज में निश्चित तौर पे बदलाव आई है। कई ऐसे गांव हैं जो सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार सुनिश्चित होने के बाद प्रबंधन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अपने आजीविका को सुनिश्चित करने के बारे में सोच रहे हैं। कई ऐसे गांव हैं जो अपने गांव के सीमा के अंदर में कुछ नियम भी बना रहे हैं, जंगल के उपयोग को लेके, उसके संरक्षण को लेके पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ है उनको भी हम अचीवमेंट के रूप में हम देखते हैं। इस काम में हमको सफलता तो मिल चुका है, जिसमें उदाहरण के रूप में नागलसर गांव था। जब हम लोग समाज के माध्यम से 2018 में शुरू किए तो वहाँ के अभी वर्तमान सरपंच है, वो मात्र झोला लेके एक ही व्यक्ति आते थे CFR क्या है वो समझने के लिए। लेकिन धीरे धीरे समझते हुए आज की स्थिति ऐसी है कि पूरा गांव एकत्रित होता है, जिसमें पिछले ही कुछ महीनों में वहाँ पूरे फॉरेस्ट विभाग गया था कूप कटाई के लिए, लेकिन पूरा गांव वाले एक साथ मिलके उस कूप कटाई को रोक लगा दिए हैं ग्राम सभा के माध्यम से करके। आमचं एटरी टीम आमचं लगे सेला देतो का देली और दावा प्रक्रिया आम्ही जमा करलून तो एटरी टीमचं माध्यम ले और सेला तो अते उसे आम्ही बैठक जब बैठक फिर आम्ही ना जानलं भी ते म्हणून फिर उन टीम के फिर उनके संगे बसून बाती आम्ही फिर उन जोन दावा प्रक्रिया के आगे बढ़ा लो। जो दूसरा अचीवमेंट के रूप में हम जो देखते हैं वो आंकड़े हैं। हालांकि प्रशासन ने भी कई सारे दावे तैयार किए हैं, हालांकि उनकी गुणवत्ता के बारे में हम कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो अच्छे तरीके के जो दावे जो एट्री संस्था और उनके सहयोगी जो दल है उनने तैयार किया है वो अलग ही तरीके का है। और अगर देखा जाए तो आज के तारीख में कम से कम 50 दावे जमा हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 30 दावों का निराकरण हो चुका है, 30 ग्राम सभाओं को अधिकार सुनिश्चित हो चुके हैं, जिसमें से राज्य के अंदर में एक पहला गांव है गुड़िया पदर, जिसको नेशनल पार्क के अंदर में एक अधिकार पत्रक मिला है, जो भी एट्री के काम करने के कारण हो पाया है। Our third achievement has been the creation of a cadre of Adivasi youth to work on community forest rights in Bastar. These young leaders have mobilized villagers to claim their forest rights and have understood the roadmap towards communities managing their forests for livelihood enhancement and sustainability. This group continues to work with complete dedication towards realizing the dream of bottom-up forest governance in Bastar. एक शुरुआत में मैं एक छोटा सा गांव में शुरुआत किया पहली बार, वो मिलकुल बड़ा था। वहाँ से फिर बीच में
वो दावा जमा करने के बाद हम लोग महाराष्ट्र 5 गांव गए थे। वहाँ प्रबंधन करने वाला पूरा सीख के आए, बहुत अच्छा लगा वहाँ देख के। कुछ दिन बाद जहाँ मैं काम किया था, बहुत वहाँ बार बार जाके समझाया लोगों को, और वो गांव का मान्यता पत्र मिला तो मेरे को बहुत खुशी हुआ। तो एनजीओ में काम करके मेरा पहला सफलता, पहली बार वहाँ का पत्र मिला तो मेरे को खुशी हुआ। फिर गांव वाले भी बुलाए और फिर वहाँ पत्र के बारे में बात किया, आगे क्या करना है ये सब। हमारा जो अगला एक्शन प्लान है वो जिन गाँव को CFR के अधिकार मिल चुके हैं उनके लिए मैनेजमेंट प्लान बनाना। मैनेजमेंट प्लान तो ग्राम सभा ही बनाएगी, लेकिन उसमें हमारी क्या तकनीकी सहयोग हम दे सकते हैं उनको प्रशिक्षण के तौर पे या दस्तावेज उपलब्ध कराने के तौर पे या फिर कोई एक्सपोजर विजिट के रूप में। तो इसी के बारे में हम सोच रहे हैं कि कैसे ग्राम सभा अपने आप में सशक्त हो सके और सशक्त होकर अपनी वन संसाधन है उसको कैसे अच्छे तरीके से प्रबंध कर सकते हैं। तो इसके लिए ही हम आगे अपने इस तरीके के काम को ही हम अपने आगे प्रोजेक्ट के रूप में देख रहे हैं कि ये कैसे काम आगे बढ़ सकता है। इसके लिए बहुत सारे एक्टिविटी भी इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि अगर पेट्रोलिंग करता है ग्राम सभा तो कैसे करेगी, कैसे नियम बनाएगी, अगर वो संरक्षण के बारे में सोचती है तो कैसे संरक्षण करेगी, क्योंकि उपयोगिता भी एक अपने साथ साथ चलने वाली चीज़ है गांव की, जंगल को उपयोगिता करने के। उसी तरीके से अगर जंगल का दोहन करना है तो उसके लिए कैसे नियम बन सकते हैं। तो जो उपयोग करने की जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में नियम बनाना और उस नियम को बनाने में जो एक्शन होगा उसके लिए किस तरीके के संसाधन जुटाया जा सकता है उसके बारे में भी बातचीत हमारी चल रही है। और उससे जो वनोपज की गांव वालों की उम्मीद है, वनोपज पे उनका ही एक अधिकार होगा और वनोपज को जो बिचौलियों पे कई औने पौने दाम पे बेचते हैं उसको एक संग्रहित करके अपने ग्राम सभा के अनुसार उन लोग बेचने का एक इस उम्मीद पे और इस हिसाब से पे वनोपज का भी सही है और उससे के साथ जो गांव को सशक्त करने का एक इस उम्मीद पे गांव वाले इस कार्य को कर रहे हैं। वन अधिकार कानून और पेशा कानून दो ऐसे प्रमुख कानून हैं जो लोकल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देकर सेल्फ गवर्नेंस का बात करता है। ग्राम सभाएं अपनी आत्मनिर्भर बन सके, ग्राम सभी अपनी निर्णय ले सके, अपनी संसाधनों का बचाव कर सके, उसकी प्रबंधन कर सके। बस्तर को हम इसी रूप में देखते हैं भविष्य में कि बस्तर के हर एक गांव है वो अपनी सेल्फ गवर्नेंस को स्थापित करके आत्मनिर्भर बन सके, उनकी आजीविका सुनिश्चित हो, उनके संसाधन भी सुरक्षित रहें और उनकी प्रकृति जो सौंदर्यता है वो भी बरकरार रहे। We have been really fortunate to get this opportunity for a hands-on experience in the claiming of community forest rights in the Adivasi heartland of central India. Our experience shows that given some respect and space, given the right kind of information and some technical support, the forest dwellers of central India are fully capable of claiming their rights, managing their forests and bringing about a dramatic improvement in forest governance in the country.